خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم عبادت کا آغاز شاعر بانی کے پہلے صفحے سے کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے نام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن راستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے میرے اٹھانے والے اور مجھ سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہم زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر بھی گناہ کرے تو آپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقل و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کرنچی گیتوں کی کتاب، گیتوں کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، چند گیتوں کی کتابیں اور خداوند کے بدل سے ہمیں ملی ہیں۔ یہ جن لوگوں کو کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ ضرور سیالکوٹ کرنچی گیتوں کی کتابوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں ہر طرح کے گیت درج ہیں۔ اس وقت ہم زبور نمبر 126 گائیں گے۔ کہتی سیلنی یہوہ نے لیندے جگ چھڑا، تب اساڑا حال سی جی میں
सुपना कोई देखता, सुपना ज़फ़ा। आए हम सब खड़े हैं।
13 अप्रैल के बाद कटाई शुरू होती है। और ये ज़बूर कहता है कि जब बीज बोया जाता है उस वक्त लोग इंतज़ार करते थे बारिश हो और ज़मीन को पानी मिले, फिर वो हल चलाते थे, फिर वो बीज बोते थे। और मुश्किल वक्त होता था, लेकिन जो खुशी होती है वो फसल काटने में होती है। आए दोबारा पढ़ रहा हूँ। अंजुआ दे नाल रो रो के जब भी हैं बीज दे फसल बढ़नगे खुशी दे नाल गागा। फसल जब फिर वो काटते हैं ना, फिर वो खुशी से काटते हैं, ढोल बजता है, फिर खुशी मनाते हैं। और पहले जो उनके घर में गंदम आती है ना फूले, वो फिर घर नहीं लेके जाए और पाजी साहब को देते। आप लोग तो कंजूस हो गए ना, खुद गर्ज हो गया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बड़े सादा दिल थे। जब उनके घर में नया अनाज आता था, घर नहीं आते थे, खुदा के खादमों को देते थे। और जितने भी लोग थे, जितने भी फसल काटी जाती थी, खुशी के साथ घर लाते थे और खुदा उनका ऐसा फायदा निकालते थे। हम पहले अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बातचीत तो खुदा उनका ऐसा। आज नोट करें इस बात को, फसल कटने वाली है और उनके घरों में कभी कमी नहीं आती थी, उनके खत्ते भरे रहते थे। क्या मतलब है? आजकल आपके जो आटे दानी है जहाँ जिसमें आटा डालते हैं वो खाली रहती है, शॉपों में लाते हैं आप। यही वजह आप देते नहीं हैं। सही में आप लोग, मैं भी आपके साथ हूँ, हम भी ऐसे हैं। नोट करें इन बातों को। अंजुआ के नाल आंसुओं के साथ रोलों के बीच बोझ देते हैं, फिर जब फसल तैयार होती है फिर खुशी के साथ करते हैं, फिर वो नाचते हैं, ढोल बजता है खुशी के साथ। और एक ही आदमी कितनी कितनी फसल काट देता है खुशी के साथ। कितनी ताकत, कितनी कुवत। काश अपने ताकत आए। आप लोग उधर बैठ कर उठा नहीं जाता, सोचते मांगते हैं, है ना? मैं भी ऐसे आपके साथ करी हूँ। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने मुझे आपको जिंदगी से दिया। आज का दिन खास दिन है, जो कलीसिया कैलेंडर है उसके मुताबिक आज माओं का दिन है। एक तो आप मदर्स डे बनाते हैं ना, वो फर्क है। ये जो बाइबल की हीरोज है ना, बाइबल की माएँ हैं, उनका दिन। और सबसे अहम और बड़ी बात श्यामल की माँ, क्या नाम था? इसी में कलाम होगा। तो खुदा आप सब माओं को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप सबको आज का दिन मुबारक। और जो मॉडर्न बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि ये जो पंजाबी में ज़बूर गाए गए इनकी चंद बातें जो हैं, जो मुश्किल लफ्ज़ होते हैं, उनका बयान आपके साथ किया जाए। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करें। कोई भी दुआ कर सकता है, खुशी से दुआ करें, दिल से करें, शुक्रगुजारी करें। खुदा ने आज रोज़ों के अय्याम में चौथा एतवार मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा। आए हम दुआ मांगे, सबके लिए दुआ करें, जो बैरून मुल्क लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो हम सब हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए भी, और अपने लिए खुदा का शुक्र अदा दुनिया से दुनिया सब प्यार ने अपने प्यारे बेटे को नीचे भेज दिया, जो कोई वहाँ हलाल काम करके बेटे की जिंदगी पाए। उसको बड़े गुनाहों का साथ की बहुत सी की उसने कबूल की, बड़ी गुनाहों का अपनी जान से नहीं देखे, बड़े गुनाहों का कफारा दे दिया, मर गया, दफन हो गया, आल में रात हो गया, तीसरे में मुर्दों में से उठा, आसमान को चला गया, खुदा के घर में बैठा है, जहाँ से पसंद हो मुर्दों की तारीफ रहेगा। ऐसे सुना से दिन का बोल से चले मत दो, सब मेरे पास हो तो मैं राम को बचाने को मैं छोड़ दूँगा। हम इस काबल की तरह कदमों में तेरी सीख भी नहीं आ सके। कोई ना कोई गुनाह खता हमसे हो जाती है, तू बेशक जिंदगी देने वाला है, तू राम का बबाद है, तू कर्म करने वाला है। तेरी आंखें धरती की चार तो ढूंढती है, जो दिल दबाव से तेरी तरफ लगाए बैठे हैं, तू उनकी विदात के लिए हर टाइम किया जाता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं दूसरे से, तेरे युग में जिनके घरों की चारों तो हाथ में तक भी आ पड़ा, हर दुख तकलीफ हर मुसीबत तंगी को दूर कर अपनी रहमत अपना कर्म करते। जो गुरु ने मुल्क बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, जिनी हासिल करने के लिए उनके लिए मैं खास शांति मांगता हूँ। ऐसे नदी शत्रु के लिए मैं खास शांति मांगता हूँ, भाई रतन के बेटे के लिए और मैडम जी की बेटी के लिए, और पीछे के जितने बच्चे गुरु ने मुल्क तलीम हासिल करने के लिए गए हैं उनके लिए मैं खास शांति मांगता हूँ। अपने सेम जानकर की, अपने माँ बाप की और कलीसिया की सब की बात करो, अपने नाम को कलाम को रोशन करे और सुलेमान जैसी हिम्मत दे, अपने पैर के साथ हो, अस्तार के साथ हो, इंतहामिया के साथ हो, इनको भी सबको फर्माता है। जिसमें तेरा पाक राम से मांग करते
आप आज सबकी पूरी फैमिली के साथ हो, उनको फोटो सोना मारता है यसु नासी जी तुझा तक बात है। हमें अपने लोग का मदद दे, हमें हिम्मत ताकत दे, तेरे नाम को दूर दूर छुपा सके और अपने जिस्मों को ऐसी कुर्बानियों के लिए पेश करे जो जिंदा पाप को समझा दे। आए यसु नासी और सबको बड़े से हमारे पास मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में मसीह के नाम से आमीन। आमीन। तब की तारीफ सूरी ते बर्शिका से साडा गम खार जिसदे मुंह ते मार मार लुके हसदे तालियां दे नाल ओदा सीना फगार होया। फगार का मतलब है जख्मी, घायल। आप भी सुनो, आप भी कई दफा बातों बातों में ना दूसरे के सीने को फगार कर देते, घायल कर देते, जख्मी कर देते। इसलिए अपनी जुबान का इस्तेमाल खुदा के खौफ में रखें। आए हम दुआ मांगे। सही हम दो तारीफ के लिए खुदा को शुक्र है। जो हमारे बुजुर्ग हैं जो कमजोरी की हालत में हैं, खुदा अपना शाफी हाथ उनकी तरफ बढ़ाए और उन्हें से होता हम महसूस कर सकें दूसरों के दुख, दूसरों की तकलीफ, दूसरों की परेशानी, ताकि उनकी मदद कर सके, रहनुमाई कर सके। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ कर सकता है।
ने अपने घर में आने का गहरा फजल दिया ताकि हम तेरे घर में आ सकें और तेरी हमद सना की सताइश कर सकें। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदा, एक नेमत के लिए, एक बरकत के लिए खुदा, सारी हिफाजत निगाहबानी के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तेरी दी हुई हर एक नेमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तू यहाँ पे मौजूद है खुदा, तेरा तख्त यहाँ पे लग चुका है क्योंकि तू वादों में सच्चा और कादिर है। तेरे सब वादे हाँ के साथ है। तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पे हाजिर और नाजिर हूँ खुदावन। तो यहाँ पे मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। फवाइद के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। खुदावन तुम हमद सना पे तख्त नशीन है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं दिल से खुदावन, क्योंकि जो तेरी शुक्र गुजारी करता है वो तेरी तमजीद करता है खुदा। हम सब मिलकर तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा और अफजल करते हैं खुदावन, क्योंकि तू अव्वल है, तू आखिर है, तू हरावल है, तू चंडावल है खुदावन, तू अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तमाम जानों के लिए खुदा जो यहाँ पे मौजूद है तेरा शुक्र करते हैं। खासतौर पर खुदा तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जिनके मुंह में तेरा कलाम है खुदा, उसको रूह और सच्चाई के साथ इस्तेमाल कर ताकि वो कलाम हम सब की जिंदगियों में एक बीज की तरह बोया जाए और वो 100 गुना फल लाए और तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंदा। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। जितने भी खुदा, जिन लोगों के लिए भी खुदा तेरे बंदा ने दुआ करो खुदा, शुक्र गुजारी करो खुदा, सारी खुदा दरखास्तें तेरे हजूर में लेके आती हूँ खुदा, उन सब के ऊपर तो अपनी निगाह कर खुदावन, अपने हाथ को बढ़ा खुदावन, ताकि तमाम दरखास्तें तेरे हजूर में मकबूल ठहरे खुदावन। तो हम सबको छू और बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आज सुबह हमारे मस्जिद के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से। आज का पहला दिन शमूएल की पहली किताब। अब जो लोग बाद में आए हैं वो ऊपर जाएं, बड़ी अच्छी जगह ऊपर भी। और जब आप फिर लेट आते हैं दूसरों को कहते हैं जी आगे आगे होते है ना, ये वैगन थोड़ी है सीट दे भाई, चर्च है टाइम पे आया करे, आगे आके बैठा करें। जब आप बाद में आते हैं तो फिर दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। दुआ हो रही हो फिर भी रुके पीछे, ऊपर चले जाए, ऊपर बहुत जगह आगे भी खाली है। हम आपकी शुक्रगुजार। आज का पहला दिन शमूएल नबी की पहली किताब है, पहला शमूएल, दूसरा बाब, पहली आयत से 5वीं आयत का। और ये हवाला अगर तुम मांग पड़े तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि ये एक मांग की दुआ है। जो भी आप पहले हाथ किसका उठा आपका, अब मेरी मजबूरी है कि मैं आपको कहूँगा, ठीक है। चले ये हवाला आप पढ़ें। और ये हवाला पहला शमूएल, दूसरा बाब, पहली आयत से 5वीं आयत। सोचा ना करें, या तो मुझे फ़ोन करके हवाला ले लिया करें, या फिर जल्दी से हाथ उठा लिया करें ताकि आप पढ़ सकें। जो बाइबल आपके सामने पड़ी है सफ़ा नंबर 259, 259, 259। आज का दूसरा विरत करंथस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, 5वां बाब, 14वीं आयत से 19वीं आयत। जो बाइबल आपके सामने पड़ी है बाइबल में सफ़ा नंबर 171, 171। मिसेस सारा स्मैर ये हवाला पड़ेगी हमारे लिए। फिर हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 375, सरपुर कनेक्शन गीतों की किताब से, तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, मुक़द्दस लूका की बात लिखी गई इंजील, 15वां बाब, 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। वाली नेल्सन कलाम मुक़द्दस की तिलावत हम सब के लिए करेंगे। सफ़ा नंबर 70, जो बाइबल आपके सामने पड़ी है। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप खुदा यीशु मसीह के सलीबी दुखों में से गुजर कर पाक संडे की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 अप्रैल को होगा पाक संडे, ठीक है जी, खुजूरों का इतवार। उसी तरह से हम होशन्ना का नारा लगाएंगे और बाहर जाके लोगों में खुशखबरी सुनाएंगे। यीशु मसीह की
यरूशलेम में आमद की तारीख से। उसके बाद 14 तारीख लास्ट सफर, जुमेरात शाम की इबादत खुदा के घर में होगी, शायरबानी होगी। गुड फ्राइडे की इबादत मुबारक जुमा 12 बजे शुरू करेंगे। खुदा यीशु मसीह की मुबारक ज़बान से निकले हुए 7 कलमात सुनेंगे। उसके बाद हम आपके लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे। कुछ लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम इस खाने में अपनी शुक्रगुजारी देंगे। आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप पूरी देख के पैसे देना चाहते हैं, सेक्रेटरी साहब को, इंतज़ामिया को आप 7,000 रुपये दे सकते हैं। अगर 2 ख़ानदान मिल के देना चाहते हैं 3-3 हज़ार दे। जो लोग भी देना चाहते हैं, हम आपके लिए उस रोज़ इबादत के बाद, ये हमारी रवायत भी है, अच्छी रवायत है, बहुत अच्छी रवायत, खाने का इंतज़ाम होगा। हम सब लोग खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा यीशु मसीह के लिए जिसने सलीब पर अपनी जान दी। चर्च के काम आप ही करते हैं, मिल के करते हैं हम सब। तो मेरी ये दरख्वास्त है, जो लोग नहदिए नजराने शुक्रगुजारियाँ देना चाहते हैं गुड फ्राइडे की इबादत के लिए, फिर सनराइज सर्विस के लिए सुबह की इबादत में फिर हम जुलूस निकालेंगे, अपने हाथों में शमे लेकर शमे रोशन करेंगे। आजकल मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि चिराग जलाया करें, इंसानों को न जलाया करें। बड़ी जल्दी लोगों को छोटी छोटी बात में जलाते हैं। हम शमे जलाएं, लोगों में खुशखबरी दें। फिर नाश्ते का इंतज़ाम करेगी इंतज़ामिया। सो हम आप सबके शुक्रगुजार हैं आपके ताउन के लिए। जब भी कोई काम ऐसा होता है आप हमारे साथ ताउन करते हैं और आप भी करते हैं। ऊपर जो गैलरी में लोग बैठे हैं उनके लिए फोम की गद्दियों का इंतज़ाम किया है, बन रही हैं। हमारी ख्वाहिश है कि 5 संडे तक सारी गद्दियाँ आ जाएं। उसमें भी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जिन लोगों ने हमें हदिये दिए हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमने वो पैसे दे दिए। और जो लोग देना चाहते हैं आज़ादी के साथ, खुशी के साथ दें, ताकि खुदा के घर के काम इसी तरह से खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज इंसानी हकूक़ की मजमूई खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन का दिन है, ताकि उनका वक़ार बुलंद किया जाए। उनके लिए हम दुआ करेंगे। और आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाबरकत है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जो औरत है खुदा ने उसको इज्जत तोहफे में दी है। सुनने में छोटी छोटी बातें होती हैं ना, कि तरह गौर से सुना करें। खुदा ने औरत को इज्जत तोहफे के तौर पर दी। जो मर्द है ना, उन्हें इज्जत कमानी पड़ती है। कई दफ़ा अपने काम भी हो जाते हैं, कई दफ़ा कामयाब भी हो जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन औरत को खुदा ने गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर इज्जत दी है। सो हम सब आज के दिन की भी बड़ी इज्जत और कदर करते हुए दुआ करें कि खुदा आप सबको आने वाले वक्त में रूहानी और जिस्मानी बरकतों से वाला माल करें। काफ़ी देर के बाद, चूँकि दुबई में थी बाजी मिसेस अंजुम जावेद, हम उन्हें वेलकम करते हैं। आप खड़ी हों, हम तालियाँ बजाएंगे, आपके लिए खुदा का शुक्र करेंगे। फिर आप सलामती के साथ वापस आई हैं मिसेस अंजुम जावेद। मिसेस स्मैर, दोनों ये बच्चे रावलपिंडी से हैं, हम इन्हें भी आज वेलकम करते हैं। खड़े हों जी, हम आपको वेलकम करें दिशा में। शिल्प के कोई और जो आज पहली दफ़ा हमारे साथ शराकत कर रहा हो, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। जिन घरों में, ख़ानदानों में दुआएँ हुई हैं, इबादतें हुई हैं, इज्तिमाई दुआएँ हुई हैं, ख़वातीन ने बड़ा साथ दिया है। इसलिए आमतौर पर ख़वातीन की वजह से घरों में बरकतें आती हैं, ख़वातीन की वजह से चर्च में रौनक और खूबसूरती होती है, घरों में भी। इसलिए तमाम ख़वातीन के लिए ताकि हम कलाम को इसी बात से कलाम में जो लिखा है, और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सीन खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की माने कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करें,
اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا توڑنے والا۔ زور آوروں کی کمانیں ٹوٹ گئی، اور جو لڑ کھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بھانج تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ بھولتی جاتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آج کی دوسری تلاوت آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت دوسرا کرنتھیوں 5 باب 14 سے 19 آیات۔ کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے نہ جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی ہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہے۔ آمین۔ گیت نمبر 375۔
भूल गए जो लोग बात हैं आगे, ये 2-3 चेयर्स खाली में आगे आते हैं, इस बेंच पे भी जो लोग नीचे खड़े हैं, नमी और सिलसिला इधर आगे बैठे जगह इधर भी आगे। आए हम कलाम को इसकी तिलावत सुने। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक हो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। इशारा करता हूँ एक खुदा का जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा की सूची पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा से पेशकश है, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलूम नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और उसकी कुदरत से कमाल की मदद से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और मैंने उसके हक में हमारे लिए शहीद हुआ, उसने उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नमीशे के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाहर के अंदर बैठा है जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए कराने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म होगी, और मैं ईमान रखता हूँ गरुल कुद्स पर जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साजिद है, उसी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और अजीम होती है। वो नबी की ज़बान बोला, मैं एक बाप आम सुन्नी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आयत जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम सब इस वक्त तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे, तो अपने कादम के मुँह में भी अपना कलाम दे, ताकि आज का कलाम एक एक ज़िंदगी के लिए बरकत, खुशी, राहत, तसल्ली और इत्मीनान का सबब है। अगर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज जमात के लिए, इन सबको अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा। कलाम को समझने के लिए अपनी इक़्तिदार में शुरू पहन दे, खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से जमात का अच्छा। मैं आप सब लोगों को आज खुदा के घर में वेलकम करता हूँ, आप सबकी खिदमत में सलावत करता हूँ, और जो लोग आज काफ़ी देर के बाद खुदा के घर में हैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ। चूँकि आज का दिन माओं का दिन है, बाइबल की रूप से बाइबल मुकद्दस में जो माएँ हीरोज हैं बाइबल, वो हमारे लिए एक मॉडल है। और मैं अक्सर माँ के बारे में एक लफ्ज़ कहता हूँ कि खूबसूरती की इंतहा देखी, खूबसूरती की इंतहा देखी कब? जब मुस्कुराती हुई माँ देखी, जब मुस्कुराती हुई माँ देखी। जब माँ के चेहरे पे खुशी होती है, मुस्कुराहट होती है, तो इसका ये मतलब और सबूत होता है कि इसकी औलाद ताबेदारी में, वफादारी में जिंदगी बसर है। चंद मिसालें यहाँ पे बैठी हैं। दूसरा लाजमी, जब बच्चे सरफराजी पाते हैं, जब बच्चों को वसाइल खुदा अता कर देता है, तो फिर इनके वालिदैन जो हैं वो भी खुश होते हैं। रुहामा मिसेस अंजल की बेटी है, जब खुदा ने इसे सरफराजी दी, वो दुबई में है, वहाँ जाके रहती हैं। अब देखें
अच्छी बात है कि आप 15 दिन की छुट्टियां आई हैं, काम भी कोई नहीं करते, लेकिन बच्चों को खुदा ने सर पर नवान बहुत अच्छा कारोबार है, दोनों भी अभी चर्च में आए हैं, हमने वेलकम करते हैं, माँ भी है। माँ के चेहरे पे जब मुस्कुराहट होती है तो इसका मतलब है कि बच्चों को खुदा ने सरफराजी दी है, इज्जत दी है, कारोबार दिया है। अपने वालिदैन की इज्जत एहतराम करते हैं जो सरफराजी बात। और भी बहुत सारी यहाँ पे लोग बैठे, कुछ माइल बाहर से होके आई, वायर में मिसेस बारबरा है। जब बच्चे तालीम इल्म हासिल करते हैं, बाहर जाते हैं, और फिर वालिदैन को भी मौका मिलता है कि वो जाएं, पूरी दुनिया देखें। और हम इन बच्चों के मसाइल के लिए, ये बच्चे सारे मेरे सामने जवान में, ये बच्चों को तो गोद में उठाया, इसलिए हम खुश होकर इनका नाम लेते और शरफी नाम आपको मुबारकबाद देते। अभी बच्चे जब कारोबार कर रहे, माँ बाप खुश हों और माँ बाप की ज़िंदगी बढ़ जाती है। और वही बच्चे अगर गलत काम करते हो, नाजायज काम करते हो, नशा करते हो, तो खानदान के लोगों की वालिदैन की जिंदगी कम हो जाएगी। इसलिए मैं सारी माओ को इस वक्त मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हवाला इस वक्त आपके लिए पढ़ा गया, जो मिसेस नजर ने हमारे लिए तिलावत की है, वो निकाले जाता कि वहां पे एक माँ की खुशी की इंतहा थी, और मेरी नजर में वो खूबसूरती की खूबसूरती की इंतहा देखी जब मुस्कुराती हुई माँ देखी। और ये माँ ऐसी थी जो बहुत परेशान थी, जो दिलगीर थी। ये लफ्ज कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं, ये बाइबल में लिखा है, कौन है बाइबल में, और आज के दिन को याद रखना है। फिर मैं आपको बता दूं, आज माओ का दिन, मदर्स डे का ज़्यादा दिन है जो दूसरे लोग मनाते हैं, ये कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक है। वो माए जैसे मूसा की माँ, इसके दिल में बड़े प्यार मोहब्बत था, खुदा ने उसे बेटा दिया, हालात ठीक नहीं थे, मुश्किल वक्त था, जो बेटा किसी के घर में पैदा होता था उसको मार देते थे। लेकिन मूसा की माँ ने बड़ी दिलेरी की, उसने एक टोकरी बनाई, अपने बेटे को लिया, उसमें रखा, दरिया में छोड़। कोई माँ अपने मरते हुए बच्चे को नहीं दे सकती, उसके सामने कोई उसको मारा। हीरो था वो भी, मूसा पासवान निजात का मंबा था, इसराइलियों के लिए वो निजात देता था, क्योंकि वो सीरी में थे, कैद में थे, तो खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। घर में कोई ना कोई बच्चा निजात देता था। आप कहते इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बच्चे की मेहनत की वजह से खानदान की जिंदगी तब्दील हो जाती है। उस बच्चे की वजह से, खा वो बेटी हो या बेटा हो, उसकी वजह से खानदान के हालात तब्दील हो जाते हैं, और फिर वालिदैन की दुनिया की बुलंदियों पर सफर करते हैं। जो खुदा ने मसरूर रहता है, खुदा उसको दुनिया की बुलंदियों पर ले सकता है। इसलिए हम तमाम माओं को मुबारकबाद भी देते हैं, दुआ को है आपकी औलाद आने वाले वक्त में खेलो खुशी की बैठी हूँ, वो भी पिछले दिनों बाहर से होके आई हैं। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये बच्चों की वफादारी होती है, फिर बच्चे मेहनत करते हैं उस काम के लिए, फिर हम नहीं करते, वो मेहनत करते हैं कि वालिदैन के चेहरों पर मुस्कुराहट आए, खुशी है। और ये माँ कैसी थी, देखिए, जिसने ये कहा मेरा दिल खुदावंद में मगन है, वो खुदा में मगन थी। मेरा सींग खुदावंद के तफैल से ऊंचा हुआ। वो जो पहले दिलगीर थी, परेशान थी, सर नीचे रखती थी, अब खुदा ने उसकी सर को ऊंचा किया। क्यों ऐसा था? कि एक ऐसा शख्स जिसकी दो बीवियां थी, एक को खुदा ने लाद दी थी, दूसरे को नहीं दी थी, और जिसको दी थी वो उसको ताना देती थी। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है, बोले इसी सफे में है, कलाम में लिखा है, नाम भी सुनने। मैं चौथी आयत पढ़ रहा हूँ। जिस दिन अलकाना, यह एक मर्द का नाम है, ज़बीहा गुजरान था, शुक्रगुजारी करता, वो अपनी बीवी फिनना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, जिसके बच्चे थे ना, और हन्ना को, दूसरी बीवी को, जिसको ज़्यादा प्यार करता था,
दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सोच, उसकी शौकन उसे बढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए बेतरा छेड़ती थी। ये उनके सुनने गौर से, कभी ऐसे ताना ना किसी को दिया करे, खुदा उस पर रहम करेगा, खुदा उसको भी सरफराजी देगा, खुदा उसके भी रहम को खोलेगा। वो उसको छेड़ती थी, लेकिन खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल, हर साल ऐसा ही करता था शख्स, उनका खामिद, और जब वो खुदा के घर जाती, इसलिए फिनना उसे छेड़ती थी, तंग करती थी, ताना देती थी। फिनना चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी, हन्ना खाना नहीं खाती, दिलगीर होती थी, परेशान होती थी। सो उसके खामिद एल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आज़ुदा है, मायूस है, परेशान है, क्या वजह है? ना ऐसा कर, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? इतना प्यार करता था अपनी बीवी से, उसको कहता था, मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी बढ़कर हूं। तो क्यों परेशान होती है, क्यों दिलगीर होती है? लेकिन जब वो शादा में खा पी चुके गए, तो हन्ना उठी। उसने उस वक्त जो वहां का एली काहिन था, पादरी था, बुजुर्ग था, हैकल में खिदमत करता था, काहिन खुदा की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ। कभी कभी मैं बाहर कुर्सी पर बैठा होता हूँ चर्च के बाहर, ठीक है। वो बुजुर्ग एली बाबा, एली काहिन, खुदा का खादिम, हैकल की चौखट पे दरवाजे पे बैठा, और वो खातून हन्ना, वो औरत नहायत दिलगीर थी, उसके दिल में मायूसी थी, परेशानी थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। खुदावंद के घर में आगे अंदर आ गई, दरवाजे पे खड़ी दिलगीर थी, और खुदा का खादिम एली बाबा उसको देख रहा था। वो दिलगीर थी, परेशान थी, मायूस थी, दुआ करने लगी, और उसने मन्नत मानी। सुनने मन्नत, कभी कभी हम मन्नत मान के भूल जाते हैं, तो खैर उसने मन्नत मानी। क्या मन्नत? कहा, है रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी के मुसीबत पर नजर करे, आए खुदा तू मुझ पर जो मेरी मुसीबत है, जो मुश्किल है, परेशानी है, इस पर नजर करे, मुझे याद फरमाए, अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, अपनी बेटी को फरामोश ना करे, ना छोड़ दे, इसकी दुआ सुने, और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे। ऐ खुदा, अगर तू मुझे बेटा बख्शे तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर करूंगी, और उस रास के सर पर कभी ना फिरेगा, मैं उसे तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। किसका ईमान था? पर उसने खुदा से फरियाद, आपका क्या ख्याल है कि खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता? सुनता है, सुनता है। जब वो खातून दुआ कर रही थी, तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का खादिम मेरी उसको गौर से देख रहा था। वो तो बेचारी दिल में खुदा से फरियाद कर रही थी, उसकी तो होंठ भी नहीं खुल रहे थे, उसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन जिसके अंदर अल्फाज थे, वो खुदा उसके अल्फाज सुन रहा था। तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना। मैं इस वक्त उन तमाम ख़वातीन से दरखास्त करता हूँ, दुआ किया करें, खुदा आप पे रहम करेगा, किसी दूसरे की बात को ना सुना करें। अन्ना भी ऐसी थी, हमारी तरह आपकी तरह की खातून थी ना, इसी तरह का दिल था उसका, इसी तरह की सोच थी उसकी, लेकिन वो खुदावंद के आगे झुकी, किसी पीर फकीर के आगे नहीं गई, खुदावंद के आगे झुकी।
शक करते हैं लोग, करने दे। एली बाबा ने भी शक किया कि शायद ये खातून पता नहीं नशे में मैं पी के आ गई है, और उसने कहा एली बाबा ऐसा नहीं है, मैं तो अपने दिल की बात, अंदर की बात अपने खुदा से कर रही हूँ। मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, तो मुझे खबीस ना जान, गलत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्र और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती भी नहीं। बेटा हम कहते हैं एक दूसरे की गल है, बोलती नहीं आजकल, परेशान। हाँ, उसके अंदर पता नहीं क्या, उसको तसल्ली दे, उसका हौसला करे, उसको हौसला दे। और फिर जब खुदा रहम करता है बंदे पर, तो खुदा के कलाम में, क्योंकि उसने खुदा के साथ वादा किया था, इसलिए जब उसने अपना दूध छुड़ाया, खुदा ने इस पर रहम किया, खुदा ने इसे बेटा दिया। अगले साल वो नहीं गई, उससे अगले साल भी नहीं गई। 3 साल तक यहूदी ख़वातीन अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। जब उसने दूध पीना छोड़ा, फिर उसे बोले, और फिर उसके सामने जो खुदा का खादिम, जो एली बाबा, जो काहिन पादरी था वहाँ पे, उसको कहा कि ये बच्चा है खुदा ने, जिसके लिए मैं दुआ करती थी, और मैंने मदद मानी थी खुदा से कि मैं तेरी खिदमत के लिए दे दूँगी, और आज मैं इसे खुदा के घर में तेरे सुपुर्द करने के लिए, ताकि ये यहाँ पे खुदा की ये बरकते, नियत ठीक हो, मन्नत ठीक हो, दिल से दुआ निकले, आज से सारी हलीमी से निकले, तो फिर खुदा आपकी दुआओं को सुनकर आपको जवाब देता है। कभी खुदा पे इल्ज़ाम न लगाया करें, खुदा साड़ी दे सुनता ही नहीं। हाँ, वो सुनता है, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। फिर सारा कुछ करने के बाद वो खुशी के साथ गीत गाती है, शुक्रगुजारी करती है। मेरा दिल खुदा में मगन, मेरा सीन खुदा के ख्याल जाओ। मैं उनके सर झुका के चलती थी अपनी सौतन के सामने, शौतन के सामने बोलती नहीं थी। अब खुदा ने मेरा भी सर फकर से बुलंद कर दिया, लेकिन वो साथ ही हदायत करते हैं कि कभी फकर ना करें। मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हुआ है। खुदा, तूने मुझे परेशानियों से, दुखों से आज़ादी दी, रिहाई दी। मेरी परेशानियां, मेरी उदासी, मेरी दिलगिरी तूने खुशी में बदल दी। इसलिए खुदा मैं खुश हूँ। खुदावंद की मानद कोई कुदूस है ही नहीं है, क्योंकि तेरे सिवा कोई है ही नहीं, ना कुछ दान है जो हमारे खुदावंद की मानद हो। 20वीं आयत 22वीं आयत सब ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए। इस कदर गरूर से और बातें ना करो। नौजवानों, कभी गरूर ना करना, ना अपनी तालीम पर, ना अपनी खूबसूरती पर, ना अपने मिसाइल पर। ख़वातीन से भी दरख्वास्त करता हूँ, कभी दूसरी ख़वातीन के सामने मगरूरी न करना कि मेरा काम इतना कमाता है, मेरे बच्चे ये सब फ़ाज़िल ने हासिल किया है, मेरे बच्चों में ये बात है। दूसरों के साथ ये मगरूरी की बात ना है। तो खुदा आपको बरकत देगा, वरना रोक लेगा बरकतें। ये कलाम में लिखा है। सुनने एक माँ की फरियाद है आपके आगे, इस कदर गुरूर से बातें ना करो कि खुदा आपका गुरूर तोड़ दे। बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदाए अली और माल का तोलने वाला है, मेरे और आपके माल को तोलता है। जोरावरों की कमानें टूट गई, कभी मान ना करें इन चीजों पर, दुनियादारी की चीजों पे, अपने वसाइल पे, अपनी कोठी पे, अपनी गाड़ी पर, अपने जेवर पर, अपनी जमीन पर, अपनी जायदाद पर, अपनी खूबसूरती पर कभी फख्र ना करें। और उस रसूल कहता मैं तो कर सकता हूँ, अपने खानदान पर भी कर सकता हूँ, सारी चीजों पर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा फख्र सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की सिर्फ ऊपर है। काश आप सबका फख्र, तमाम ख़वातीन, तमाम माओं का फख्र खुदावंद यीशु मसीह की सिर्फ ऊपर, जिस पर उसी ने मेरी खातर और आपकी खातर अपनी जान। जोरावरों की कमानें टूट गई, जो लड़खड़ाते थे खुदा ने उन्हें कमर बस्ता कर दिया, उन्हें अपनी कुव्वत दे दी, अपनी ताकत दे दी। क्योंकि जब खुदावंद की तरफ से मुझे और आपको ताकत मिलती है, तो फिर उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे और आपको खुदा और आगे लिखा है, सुनने वाली बातें हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी में हर रोज पाई जाती है।
बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, खुदाया ईमान का बोलने वाला, जोर आलू की कमानी टूट गई, जो लड़खड़ाते थे खुदा ने उन्हें कुव्वत दे दी, ताकत दे दी। वो जो आसूदा थे रोटी की खातर मजदूर बने। इस आयत को समझे, जिनके पास बहुत कुछ था, जिनके पास बहुत वसाइल थे, जिनके पास सारी आराइशें और आसाइशें थी, वो आसूदा लोग थे, उन्हें किसी तरह की कमी नहीं थी। लेकिन वक्त आया कि उनकी मजदूरी की वजह से खुदा ने उन्हें मजदूर बना दिया। किसके लिए? रोटी के लिए। बात समझ रहे हैं? आसूदा थे, सारी चीजें थी, वसाइल थे, सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर मजदूरी, गुरूर था, दूसरों को कुछ समझते नहीं थे। तो खुदा ने उन्हें मजदूर बना दिया। मजदूरी करके सिर्फ रोटी की खातिर वो मजदूर बने। इससे पहले उनके पास सब कुछ था। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बड़ा बोल बोला, इसलिए कि उन्होंने मगरूरी, इसलिए कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते, दूसरों को अपने से कम कर समझते। इसलिए मैं हर इतवार एक बात आपके सामने कहता रहता हूँ, मोहब्बत की रूह में एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, अपने से बेहतर जाने, दूसरों को इज्जत दें, दूसरों की इज्जत करें, ताकि खुदा आपको रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माले। जो आसूदा थे, जिनके पास सारा कुछ था, वो रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे बेचारे, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं था, उनको खुदा ने मिसाइल दे दी, उन्हें खुदा ने बरकत दे दी। क्यों? उन्होंने आजिज़ी से, हलीमी से, फरोतनी से, खुदा से दुआ करते रहे। उनके अंदर वो रूही नहीं, वो हलीम रहे, वो आजिज़ रहे, वो इनकी सारी के साथ चलते रहे, दूसरों को इज्जत देते रहे, वो दूरी नहीं की। इसलिए खुदा ने उनको जो भूखे थे ऐसे न रहने दिया, वसाइल दे दिए, बल्कि जो भांज थी उसके साथ हुए। जिसको लोग कहते थे ये भाग जाए, उसको खुदा ने कितने दे दिए? अगली आयत सुने, सुनने वाली बात है। जिसके पास बहुत बच्चे थे, वो खुलती चाहिए। बच्चे थे, नालायक थे, बच्चे थे नालायक, सही नहीं थे, और वो खुलती थी, किसी कुछ कह नहीं सकती थी, अंदर ही अंदर से वो खुलती जाती थी। क्यों? अब यहाँ पे जो खास सवाल, चैलेंज आप सबके लिए है, माओ के लिए, नौजवान बेटियों के लिए, तालीम, इल्म इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, तरबियत की कमी है। आप तरबियत सही करें बच्चों की, ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदा ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, क्या? उनकी तरबियत है। जो भांज थी उसके साथ खुदा ने दी, जिसके पास बहुत बच्चे थे वो खुलती जाती थी। मैं कायद इस्तेमाल किया करता हूँ मेमोरियल सर्विस में। अगर किसी आदमी के 100 बेटे बेटी, और वो कई वर्षों से भी कहीं ज्यादा तक वो जीता है, लेकिन उसके दिल में मन में तसल्ली ना हो, खुशी ना हो, राहत ना हो, उम्मीद ही ना हो, और जब वो बेचारा मरे तो उसको कोई दफन करने वाला भी ना हो, उसके लिए खुदा के कलाम में लिखा अच्छा होता कि वो शख्स दुनिया में ना हो। जब खुदा बरकत देता है, आपको सरफराजी देता है, तो फिर हम ये इख्तियार करें। ये बात मुक़द्दस लूका की इंजील में उस खतून के लिए भी की गई जिस खतून का धर्म गुम हो गया था। वो परेशान हो गई थी, मायूस हो गई थी, और वो ढूंढती थी जो गिफ्ट होता है ना, जब वो गुम हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है। निकालें जरा से, एक आयत वहाँ से लूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा तो आप थक जाते बड़ी जल्दी। वैसे आप बात नहीं थकते, कलाम जब सुनते फिर थक जाते। 15वें 8वीं से 10वीं 2-3 आयतें हैं, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं। ये खतून जिसके पास 10 दिरहम हो, एक खो जाए, एक चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे जब तक मिल ना जाए, कोशिश से वो ढूंढती ना रहे, वो ढूंढती रहती है जब तक नहीं मिलता। आप उनसे अगर किसी के पास नेकलेस
और इनके पास जगह होता है ना, उनमें से 10 नेकलेस के मोती खूबसूरत, एक गजे 9 आपके पास अभी है, तो एक गजे उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, पूरे खानदान में गुम हो गई जब तक नहीं मिल रही, ठीक है, और वो ढूंढती है, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है जब मिल जाए तो फिर वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को बुलाकर कहती है आए मेरे साथ खुशी करें, क्योंकि मेरा खोया हुआ जो धर्म है, जो मोती है, जो नेकलेस का हिस्सा है, वो गुम हो गया था, मिल गया है। ये है खुशी, दिल से अंदर से खुशी होती है। तो खुदा भी पाक है, मुझे और आपको प्यार करता है। इसी तरह से अगर औलाद में से कोई एक बच्चा भी खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है इसको ठीक करने में। खुदा भी ऐसे ही है, पाक है, वो भी मुझे और आपको दुरुस्त करने की कोशिश करता है, बशर्ते कि मैं और आप दुरुस्त होने की ख्वाहिश का इजहार करें, और जब मिल जाता है वो खुशी करे। इसी तरह आगे लिखा है एक तौबा करने वाला शख्स, आप में से अगर एक बंदा भी तौबा कर ले, खुदा के फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और आखिरी जो हवाला आपके लिए पढ़ा गया उसकी तो मिसाल होती है, जब कोई तौबा कर लेता है, नई जिंदगी में आ जाता है, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है फिर हमें खुदा यीशु मसीह की जो मोहब्बत है वो मजबूर करती है कि हम दूसरों की इज्जत और एहतराम करेंगे। तो खुदा यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मर गया। लेकिन 17वें में लिखा है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अब वो हन्ना वो वाली हन्ना नहीं क्योंकि खुदा ने इसको औलाद दे दी, इसको बेटा दे दिया, और वो बेटा भी ऐसा जिसने खुदा की दी। मुझे आपको अपनी सोच भी बदल दिया। सांप के बारे में सुना ना आपने, सुक्रोंज उसके ऊपर दिया कुछ सालों के बाद। क्यों जी, किस चीज को बताया? जल्दी जल्दी हाथ दिखाएं। वेरी गुड वेरी गुड। सुक्रोंज उसके ऊपर वाला उसका जो हिस्सा होता है जिल्द उतर जाती है और फिर नया निकलता है। लेकिन सांप ही रहता है, जहर अंदर ही रहता है। अब नया आप ऐसा ना करें, ऊपर से तो सब लोग चल जाए, नया लिबादा तो पहन लें, लेकिन अंदर का जहर उसी तरह से रहे। गुफ्तगू हमारी ऐसी है, मगरूरी हो, दूसरों को ताना देने वाली हो, ऐसा ना करें। ऐसा होगा फिर आप नया मखलूक नहीं। इसलिए खुदा के कलाम में 17वें को लिखा, इसलिए अगर कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सोच ही बदल गई, टेढ़ी तिरछी जिंदगी खूबसूरती में बदल गई। काश मेरी रात हम सब की ये जिंदगी जिसमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ उदासियां हैं, कुछ मगरूरी है, ये खत्म हो, नई सोच हो, मुस्बत सोच हो, रवैये ठीक हो, पॉजिटिव हो, और हम एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते रहें ताकि ज़मीन पर हम सबका भला हो। क्योंकि जब मैं आप अपनी सोच को बदलते हैं, हम नया मखलूक बन जाते हैं, फिर दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनते हैं, जिस तरह हन्ना दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। खुदा आप सबको ऐसा करने की कोशिश करें। हम दुआ मांगे इस कलाम के लिए, खुदा का शुक्र अदा करें। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज के लिए। खुदा के कलाम को खुदा ने बड़ी अज़मत दी, हर नाम से ज़्यादा अज़मत खुदा ने अपने कलाम में दी। आए हम समय करें कि कलाम से उसको हम भी दावा लगाएं और खसूसन अपने बच्चों के लिए दिल इरादा करें, क्योंकि तालीम तो बहुत ज़्यादा तरबियत पर जोर दें। ये सब कुछ प्यारे बेटियाँ उसी के नाम से हमारा मुझे
तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारी तेरे ज़रूर गुजारें। इस हदिये में तेरे लोगों की दरख्वास्तें, मन्नतें, फरियादें, मनाजातें, दरख्वास्तें, अपने लोगों की दरख्वास्तों, मन्नतों को अपने हुज़ूर कबूल फरमा। इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, इन सबके हाथों की कमाई में बरकत, इनकी औलाद को सरफराज करें ताकि बच्चे तालीम और इल्म हासिल करें, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने और वालिदैन हमेशा हर लम्हा हर सांस पे तेरे नाम का शुक्र अदा करें। इस सदी की तकदीस कर देने वालों को बरकत दे। दफा बेटे और उसके नाम से जमायत कैसे के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैन की भी तकदीस करें ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से एक दिल में बाप के पास हम सबकी रसाई हो। खुदा तुम्हारे साथ अपने दिल लाल में वादा पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें कि नहायत वाजिब मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप काबिल मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डाइस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की हुक्मरान जमायत के लिए, तमाम गवर्नर्स के लिए, तमाम वज़रा के लिए, जिन लोगों के पास अख्तियार है इक़्तिदार है, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जिलाल की हम ताज़ीम करते हैं और हमेशा ये तेरी सताइश करते हैं। तक़द्दूस सब बोले वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जिन इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इस सलीब पर बहुत दुआरा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी काम और काफ़ी कुर्बानी नज़्र और मौत कर दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेघर लोगों पर रहम कर, जो मुश्किल में है उन सब पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर हम सब पर, मज़हबी लीडरान पर रहम कर। उसी वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हूँ तो मैं से करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा नहीं करते हो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए हद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बंदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा नहीं किया। जिस तरह हमारे बुनियादी खुदाम यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर खड़ी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज में दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि से बचा बादशाही कुदरत जलाल हमेशा करते हैं। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर करें, नहीं खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी मेज़ के पास आने की हिजरत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं जो अपने तेरी मेज़ पर गुजरते हैं, लेकिन वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदा ये बख्श
कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह में उसके नहाए बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएँ और हम उसमें और वो हमें हमेशा से वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत उसी के मदद की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे इस मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे इस मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हम भी एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ करते हैं। खुदा आपसे इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आप सबको बरकत दे। ज़रूर एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं, खुदा से बरकत मांगे, इत्मीनान मांगे, ताकि खुदा आपके घरों में, खानदानों में, आपकी शख्सी ज़िंदगी में इत्मीनान लाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप आएँ, खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ। सब लोग शहर की तरतीब की किताब का आखिरी सफ़र खोले, वहाँ पे शुक्रगुजारी की दुआ है। अच्छा है कि आप शुक्रगुजारी की दुआ में शरीक हों, फिर घर में घरों में जाएँ। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, काबिल मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेध किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम एक प्रोफेशन के लिए जो बयान से बाहर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। बदल बख्श, ताकि हम इंसान की हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल हम जाने सकते, सूरत बदलते जाएँ और एक दिन नेक और कामिल मर्जी सीखें और ईशान में इसी तरह तेरी गुलामदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस में खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता और सब करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा है। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा की की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और काबिल मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ और हम सब के तमाम अज़ीज़ों रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ हम कदे बरकत होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। मैं तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बिजली दुआ करें। हम आप सबके आने के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, आप आज हम दुआ मांगे। खुदा आसमानी बाप, मिस्टर मिसेस आज़म के लिए, मिस्टर मिसेस जमान के लिए खास दुआ करते हैं। तेरा शाफी हाथ नौजवान जोड़े की तरफ पड़े, उन्हें प्यार, मोहब्बत और सब्र की रुता फरमा, ताकि मिस्टर मिसेस आज़म अपने इन सारे बच्चों की खुशियाँ लेके उनकी दरख्वास्त और उनके दिल की जो मुराद है तू जानता है, तो अपना हाथ खड़ा होने से तंदुरुस्ती दे
और आने वाले वक्त में इन बच्चों को और ज़्यादा सरफराजी अता फरमा। जितने लोग तेरे घर में मौजूद हैं हम सब एक जान एक गुरु कर उससे इल्तिजा प्रयास मिन्नत करते हैं, तुम्हारे घराने को खेलों खुशियाँ दे, रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल कर, किसी चीज़ की कमी ना आ पाए। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम